Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. I hope that you all will be fine and you will be taking your online classes and you will be giving time to your studies as well. Welcome you all to your online English class from Peshawar Model School Boys 3. Before starting our today's lecture, let me tell you that in our previous online classes we have done with the reading and explanation of unit number 13, the fox in the well. Then we did its question answers, its true and false exercise, and rest of the grammatical exercise we all have done. And in our last lecture we did with the comprehension paragraph of that unit. So maximum we have finished all the work in unit number 13. ठीक है, of unit number 13 we have totally finished the work. Now in today's lecture we are going to read out unit number 14. So you have to take out first of all your English book and you have to take out your stationery from your bags. ठीक है, as we are going to start a new unit today from its reading and explanation, so you have to must keep your pencils in your hands to write down the meanings, to underline the words and note down their meanings. Right, you can see this English book on your screen, so you have to get ready with this book. Okay जी, our today's topic is unit number 14, ducks in danger. ठीक है, unit number 14, page number 62. Unit 14, page number 62, ducks in danger. Do you know what is a duck? आपने कभी देखी है duck क्या होती है? Duck is a bird. ठीक है, डक इज़ अ बर्ड, ये एक परिंदा है और ये ऐसा परिंदा है इट लिव्स नियर वाटर. ठीक है, मोस्टली इट लिव्स नियर रिवर्स. ठीक है, ये पानी वाली जगहों के पास रहते हैं एंड दे ऑल्सो मेक देयर नेस्ट नियर रिवर. ठीक है, और ये अपना नेस्ट जो होता है, अपना घोंसला जो होता है, वो भी पानी के करीब बनाती हैं. ठीक है, देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ डक्स. Clear? You can see in this picture that there are white ducks. ठीक है, the ducks are also white. They are colorful as well. They are also in like we can say light brown color. खाकी सा जो कलर होता है उस कलर में भी ये पाई जाती हैं. So they are found in different colors. Right? Okay जी. Ducks in danger means खतरा. ठीक है, डक्स इन डेंजर का मतलब है कि जो डक्स हैं वो ख़तरे में हैं. इन दिस यूनिट वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द डक्स एंड द डक्स आर इन डेंजर. ठीक है, यानी ऐसे डक्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं. ठीक है, डक्स के बारे में जिनको ख़तरा है और उनको किस चीज़ से ख़तरा है. लेट मी रीड आउट द चैप्टर फॉर यू. ठीक है, एंड विल डिस्कस इट दैट हाउ दे आर इन डेंजर, कि वो किस तरह से ख़तरे में हैं. राइट? Okay जी, so you have to keep your books open in front of you as I have asked you to open page number 62 so that we can start our explanation, ताकि हम अपनी रीडिंग और एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट कर सकें. राइट? ओके जी, as I have told you that there are different kinds of ducks. ठीक है, here you can see another kind of duck in this picture. Right? ठीक है, this is another kind of duck and this is having her kids as well. ठीक है, उसके साथ उसके बेबीज़ भी हैं. ओके जी, सो दिस इज़ द वेरी फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ योर यूनिट. ठीक है, आपकी जो यूनिट का पेज नंबर 62 है, इट्स हैविंग 2 पैराग्राफ्स. ठीक है, ये लेसन जो है हमारा 2 पैराग्राफ्स पर कंसिस्टेड है. सो इट्स द वेरी फर्स्ट पैराग्राफ. वी आर गोइंग टू रीड इट राइट नाउ. As I have asked you to keep your pencils in your hands, so you may underline the words. Okay, let me tell you one thing more. What you can see on the screen of your laptops or mobiles or whatever device in your hand. ठीक है, आपको जो words यहाँ पर you can see that the most of the words are written with black pen. ठीक है,
ब्लैक आपको कलर में नज़र आएंगे एंड सम ऑफ द वर्ड्स आर रिटन विद ब्लू वन, ठीक है। तो जो ब्लू वंस वर्ड्स हैं दे आर द मीनिंग्स, ठीक है। तो आपको इसके पहले जो वर्ड नज़र आएगा इट मीन्स दैट वर्ड इज़, यू हैव टू अंडरलाइन दैट वर्ड एंड यू हैव टू राइट द मीनिंग विद दिस वर्ड, ठीक है। सपोज ये हमारे पास बिसाइड का वर्ड आ रहा है ना, तो यू विल अंडरलाइन द वर्ड बिसाइड एंड बाय द साइड वर्ड इज इट्स मीनिंग। अनदर एग्जाम्पल इट लेस, वर्ड को आप अंडरलाइन कर लोगे एंड यू विल राइट इट्स मीनिंग प्रोड्यूस। इन द सेम वे यू आर गोइंग टू राइट डाउन ऑल द मीनिंग्स ऑफ दिस यूनिट। सो लेट्स स्टार्ट द with explanation and reading. Okay ji. Baby ducks called ducklings are born in nest. The nest is often built in long grass beside, underline the word beside, a river. The mother lays between 6 and 8 eggs. She spends some weeks sitting on the grass to keep them warm. She sometimes leaves to get food but soon returns. She is a good mother. One day the eggs begin to crack open. The ducklings are now ready to come out of the shells. This is called hatching. The mother keeps them warm, feeds them and teaches them how to behave. She helps them to walk, to swim, to get food, and to avoid danger. Baby ducks are good at following their mother everywhere. They stay close by all the times. Other animals like fox are waiting to snap up a baby duck for dinner. Even greedy birds might eat them. So this is all about your first paragraph. I have read the paragraph and now let me tell you that you have to underline which words. Underline the word beside. The meaning is by the side. Underline the word lays. Lays means produce. Produce. P-R-O-D-U-C-E, produce. Spends. Spend means consume. C-O-N-S-U-M-E, consume. ठीक है, जिसे हम खर्च करना भी कहते हैं. Okay, returns. Returns means come back. You can give a gap between these two words. Come back, वापस आना. Okay, underline the word crack. Crack means break, टूटना. B-R-E-A-K, break. Okay, some other words as well. Shells. Underline the word shells. ठीक है, and its meaning is skin. S-K-I-N, skin. Okay, next word is, okay, another word, hatching. Underline the word hatching here. Underline this word. It means producing. Producing, P-R-O-D-U-C-I-N-G, producing. Okay. Feeds means give food. Underline the word behave. Behave means act. Okay. Next word is avoid. Avoid means keep away from. Or you may write keep away. ठीक है, दूर रहना. Following means going after. Following, going after, यानी किसी का पीछा करना, किसी को फॉलो करना, किसी की नकल करना. Fox is a wild animal. In the previous lesson we have discussed it, we have read about this and we have also showed you the picture. Okay, snap up means grasp,
मीन्स झपटना किसी चीज़ पर, GRASP, grasp. And greedy means eager, lalchi, right? Okay जी, coming to the explanation. Baby ducks called ducklings are born in nest. ठीक है, first of all they have told us that baby ducks called ducklings are born in nest. ठीक है, जो baby ducks होते हैं, as you can see in this picture that there are babies. ठीक है, यहाँ पर जो babies हैं that there are the babies of ducks. ठीक है, दे आर कॉल्ड डकलिंग्स. ठीक है, जो बेबी डक्स होते हैं दे आर कॉल्ड डकलिंग्स, इनको डकलिंग्स कहा जाता है. आर बॉर्न इन नेस्ट, ये कहाँ पैदा होते हैं, ये नेस्ट में पैदा होते हैं. नेस्ट क्या होता है? ठीक है, एज वी आर ह्यूमन बींग्स विल लिव इन आवर होम्स, हम अपने घरों में रहते हैं. सो एनिमल्स एंड बर्ड्स आर हैविंग देयर होम्स एज वेल. ठीक है, तो जो ज़्यादातर जो एनिमल्स होते हैं, वाइल्ड एनिमल्स, दे लिव इन द फॉरेस्ट. बट वेयर डू एनिमल्स लिव? दे मेक देयर नेस्ट एंड दे लिव इन देयर नेस्ट. उनका जो घर होता है वो नेस्ट कहलाया जाता है. ठीक है, घोंसला जिसको हम बोलते हैं. सो डकलिंग्स आर बॉर्न इन नेस्ट. वो कहाँ पैदा होते हैं? डकलिंग्स अपने नेस्ट में पैदा होते हैं. द नेस्ट इज़ ऑफन बिल्ट इन लॉन्ग ग्रास बिसाइड अ रिवर. ठीक है, अच्छा, अब ये नेस्ट कहाँ बनाया जाता है? मोस्टली द डक्स मेक देयर नेस्ट इन लॉन्ग ग्रास बिसाइड अ रिवर. ठीक है, बिसाइड मीन्स बाय द साइड, यानी ये ज़्यादातर अपने जो घोंसले बनाती हैं वो दरिया के किनारे जो लंबी लंबी घास उगती है ना, वहाँ पर अपने वो घर बनाती हैं. दी मदर लेस मीन्स प्रोड्यूस बिटवीन 6 and 8 eggs. ठीक है, जो मदर होती है, मदर डक जो होती है वो तकरीबन 6 to 8 eggs देती है. शी स्पेंड सम वीक्स सिटिंग ऑन द एग्स टू कीप देम वार्म. देन शी कीप्स सिटिंग ऑन दीज एग्स फॉर अ फ्यू वीक्स. ठीक है, वो फिर कुछ हफ्ते इसके ऊपर बैठती है टू कीप देम वार्म. ठीक है, यू मस्ट हैव रेड इन साइंस, अगर आपने पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो यू विल रीड इंशाल्लाह, दैट द बर्ड्स कीप सिटिंग ऑन देयर एग्स टू कीप देम वार्म. ठीक है, वो एग्स पर बैठती हैं, उनको गर्म रखती हैं. उसके बाद जो एग्स होते हैं उनके अंदर से बेबी हैच होता है और फिर बेबी बाहर आता है. राइट, सो सेम इज द केस विद देम, दैट द मदर duck keeps sitting for a few weeks on the egg. She sometimes leaves to get food, but soon she returns. ठीक है, sometimes she has to go to find food, but she returns soon. ठीक है, वो जाती है फूड हासिल करने के लिए, खुराक लेने के लिए, लेकिन वो जल्दी वापस आ जाती है. राइट, शी इज़ अ गुड मदर, वो एक अच्छी माँ होती है. वन डे द eggs begin to crack open. The ducklings are now ready to come out of the shells. What happens then? वन डे, एक दिन, द एग्स बिगेन टू क्रैक मीन्स ओपन. ठीक है, चूँकि ये अंडे गर्म रहते हैं उसके बैठने की वजह से फिर एक दिन ये आहिस्ता आहिस्ता टूटना शुरू हो जाते हैं. राइट, एंड द डकलिंग्स आर नाउ रेडी टू कम आउट ऑफ द शेल्स. ठीक है, नाउ द डकलिंग्स आर, जो इसके अंदर स्मॉल बेबीज़ होते हैं डक के, जो डकलिंग्स होते हैं वो रेडी होते हैं शेल से, स्किन से, अंडे की जो स्किन होती है उनसे बाहर आने के लिए वो रेडी होते हैं. दिस इज़ कॉल्ड हैचिंग. दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड हैचिंग. ठीक है, ये जो अंडे का स्किन जो होती है उसके जो छिलका होता है उससे टूट कर जब वो बेबी बाहर आता है तो इस प्रोसेस को हैचिंग बोलते हैं. मीन्स प्रोड्यूसिंग. द मदर कीप्स देम वार्म. अच्छा, अब मदर का क्या काम है कि वो अब बेबीज़ को भी वार्म रखती है, उनको गर्म रखती है. फीड्स देम. ठीक है, उनको खुराक देती है. एंड टीचेस देम हाउ टू बिहेव, हाउ टू एक्ट. ठीक है, फिर उनको वो सिखाती है ना कि आपने कैसे एक्ट करना है. मीन्स दैट हाउ यू हैव टू स्विम. ओके, कम हियर. शी हेल्प्स देम टू वॉक, टू स्विम, टू गेट फूड एंड टू अवॉइड डेंजर. ठीक है, अब वो उन्हें क्या सिखाती है? शी हेल्प्स देम टू वॉक, उनकी चलने में हेल्प करती है, उनको स्विम करना सिखाती है, उनको फूड हासिल करना बताती है, एंड टू अवॉइड डेंजर, और उनको ये भी सिखाती है कि आपने अपने आप को ख़तरे से कैसे बचाना है. अब ख़तरा उनको किस तरह से हो सकता है. ठीक है, उनको डेंजर हो सकता है हंटर्स से, कि उनको कोई शिकारी ना वहाँ से उठा ले, या उनको डिफरेंट सी बर्ड से होता है, एनिमल्स से होता है, बिकॉज
there are many animals, there are many seabirds which snap up these ducklings, and which animals they make their food फॉर themselves. ठीक है, वो इन डकलिंग्स को अपना शिकार बनाकर अपनी खुराक के लिए इस्तेमाल करते हैं. सो द मदर डक टीचेस देम हाउ दे हैव टू अवॉइड डेंजर. राइट, कि उन्होंने खतरे से किस तरह से दूर रहना है. बेबी डक्स आर गुड एट फॉलोइंग देयर मदर एवरीवेयर. ठीक है, अब बेबी डक्स जो होते हैं ना, ये एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर दैट देयर इज़ अ मदर डक एंड शी इज़ हैविंग हर डकलिंग्स. अब ये बहुत अच्छे होते हैं, किस चीज़ में बहुत अच्छे होते हैं? बिकॉज दे फॉलो देयर मदर एवरीवेयर. वो अपनी मदर के बिल्कुल साथ साथ जाते हैं. ठीक है, दे स्टे क्लोज बाय ऑल द टाइम. वो सारा टाइम अपनी मदर के बिल्कुल साथ साथ रहते हैं. ठीक है, इट्स वी कैन से अन नेचुरल थिंग. जब छोटे बच्चे जो होते हैं वो भी अपनी माँ के पास रहना पसंद करते हैं. ठीक है, उन्हें ऐसा फील होता है कि व्हेन दे आर विद देयर मदर दे आर सिक्योर, दे आर सेफ. ठीक है, सेम इज़ द केस विद द बर्ड्स एज वेल, with the animals as well, that they keep close to their mother when they are very little ones. ठीक है, जब वो छोटे होते हैं तो अपनी बिल्कुल मदर के साथ साथ रहते हैं. So other animals like fox are waiting to snap up a baby duck for dinner. Even greedy birds might eat them. ठीक है, अच्छा, why? अब कि किस लिए क्लोज रहते हैं? बिकॉज अदर एनिमल्स लाइक फॉक्स, जैसे फॉक्स हो गई, इट्स वाइल्ड एनिमल, दे आर वेटिंग टू स्नैप अप, टू ग्रैस्प अप. ये बिल्कुल तैयार होते हैं कि जैसे ही हमें कोई बेबी डक नज़र आए, कोई डकलिंग नज़र आए, तो इसको स्नैप अप करें, इसके ऊपर झपट जाएं. ठीक है, और उसको ग्रैस्प करके अपने यहाँ डिनर बना लें, अपनी खुराक बना लें. इवन ग्रीडी बर्ड्स माइट ईट देम. ठीक है, और कुछ बर्ड्स भी ऐसे हैं, देयर आर most of the kinds of birds which like to eat the ducklings in their dinner. वो इनको खाना पसंद करते हैं. and whenever they find a chance they just snap, they just grasp them in their mouth. ठीक है, और उसको साथ ही निकल जाते हैं. so this was the first para's explanation. coming to the Okay ji, so these are different kinds of birds as I have started you in the beginning. I have told you in the beginning, ठीक है, it's a colorful. ठीक है, in the beginning I have shown you the white color ducklings, then I have shown you the ducklings in yellow color, and this is another kind of ducks as well, right? Okay, let me show you another picture of ducklings. ठीक है, these are the baby ducks called ducklings. ठीक है, हमने जो पढ़ा अभी कि जो डकलिंग्स होते हैं, बेबी डक्स जो होते हैं, दे आर कॉल्ड डकलिंग्स. इनको डकलिंग्स कहा जाता है. कि यू कैन सी नाउ इन दिस पिक्चर देयर आर डकलिंग्स. ओके जी, कमिंग टू द सेकेंड पैरास एक्सप्लेनेशन. अब थोड़ा सा हम यहाँ आ जाते हैं. ओके जी, so you have to underline the words as you have done in the previous para. One day a mother duck was teaching her 8 babies to swim in a cheeky seagull, underline the word seagull, swooped down and grabbed a duckling. Mother duck was very upset because her baby was gone. The other ducks were scared. Suddenly, the greedy seagull came back. He grabbed another baby duck, but this time Mother Duck was ready. Quack, 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 she screeched. A fight began with lots of quacking and flapping. Mother Duck was very angry. The seagull was frightened and dropped the little duckling. Mother duck out him under her wing to mind him. Okay boys, as this is your second para, let me tell you all the words which you have to underline, and you may write the meanings before explanation. Underline the word seagull. The meaning is seabird. Then next word swooped. Swoop means fell, गिरना.
Then next word is snatched. Snatched means, grabbed means, underline the word grabbed. Grabbed means snatched, छीनना, झपटना किसी चीज़ पर. Next word is upset. Upset means sad. Scared. Scared means fear. Suddenly. Suddenly means at once. Okay. I have left a word. Here, underline the word cheeky. Cheeky means bold. B-O-L-D, bold. Okay. Then screeched. Underline the word screeched. Screech means screamed. S-C-R-E-A-M-E-D, screamed. ठीक है, shouted भी आप लिख सकते हैं if you want to write. Okay, here was another word. Quaking is a sound of ducks. और flapping का meaning है flying, right? Flapping means flying. Okay, coming to explanation. One day a mother duck was teaching her 8 babies to swim in. ठीक है, as you can see in the picture that here is a mother duck and she is teaching her ducklings, her babies, her 8 babies how to swim. ठीक है, एक दिन मदर डक जो थी वो अपने बच्चों को तैरना सिखा रही थी, राइट? ठीक है. अ cheeky seagull swooped down and grabbed a duckling. ठीक है, क्या हुआ? एक चीकी मीन्स एक बहादुर सीगल जो था, इट्स अ सी बर्ड. ठीक है, आई विल शो इट्स पिक्चर यू एज वेल. अ cheeky seagull swooped down, fell down and grabbed a duckling. ठीक है, snatched a duckling. जल्दी से फ़ौरन से एक सी गल जो था, यू कैन सी हेयर इट्स अ सी गल. ठीक है, ये अचानक से ऊपर से फ्लाइंग करता हुआ झपटता है ज़मीन उसकी तरफ, रिवर की तरफ, सी की तरफ वो नीचे आता है और साथ ही वो झपटता है इस डकलिंग के ऊपर और उसको अपने मुंह में लेकर उड़ जाता है. ठीक है. मदर डक वॉज अपसेट बिकॉज हर बेबी वॉज गॉन. ठीक है, अब क्या हुआ? मदर डक वॉज अपसेट, शी बिकेम सैड, वो खफा हो गई, बिकॉज हर बेबी वॉज गॉन, क्योंकि उसका जो बच्चा था वो चला गया था ना. एंड एज आई हैव टोल्ड यू दैट इट्स वेरी मच नेचुरल इन ह्यूमन बींग्स, इन बर्ड्स और इन एनिमल्स. ठीक है, ये जो सारे वी कैन से दैट दे आर ऑल द लिविंग थिंग्स, दे फील सैड फॉर देयर बेबीज़. ठीक है, ये सब मदर्स की नेचर होती है कि वो खफा होती हैं अपने बच्चों के पीछे, वेदर शी इज़ वी कैन से अ ह्यूमन मदर और एन एनिमल मदर और अ बर्ड मदर. ठीक है, सो शी बिकेम अपसेट, शी बिकेम सैड, वो खफा हो गई अपने बच्चे के पीछे. द अदर डक्स वर ऑल्सो स्केयर्ड. स्केयर्ड मीन्स फियर. बाकी जो डक्स थी वो भी सारी की सारी डर गई. सडनली एट वंस, अचानक, द ग्रीडी सी गल केम बैक. अच्छा, क्या किया कि उसको या तो उसने निगल लिया पहले वाली डकलिंग को, या उसको कहीं वो छोड़ कर आया ना अपने खुराक के लिए, दोबारा वापस आ गया. ठीक है, सडनली द ग्रीडी सी गल केम बैक, दोबारा से वो वापस आया. ग्रीडी कहते हैं लालची को. ही ग्रैब्ड मीन्स स्नैच, झपटा वो. another baby duck, but this time mother duck was ready. ठीक है, अब जैसे ही वो दूसरे बेबी पर झपटा, उसने उसको स्नैप अप किया, उसको ग्रैब करने किया. ठीक है, दिस टाइम मदर डक वॉज रेडी. अब तो वो रेडी बैठी हुई थी मदर डक. क्विक क्विक क्विक. ठीक है, इसके बड़े मज़े की साउंड होती है जब वो अपने माउथ से प्रोड्यूस करती है ना, क्विक क्विक क्विक. शी स्क्रीच्ड मीन्स शी वॉज स्क्रीमिंग, शी वॉज शाउटिंग. अब वो जो क्विक 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 कर रही थी तो वो ऐसे नहीं कर रही थी. शी वॉज शाउटिंग, शी वॉज शोइंग हर एंगर, शी वॉज शोइंग हर फीलिंग्स. वो अपनी फीलिंग्स को, अपने एंगर को शो कर रही थी, राइट. अब फाइट बिगेन, तो क्या हुआ? एक लड़ाई शुरू हो गई विथ लॉट्स ऑफ क्वैकिंग एंड फ्लैपिंग. ठीक है, फ्लैपिंग कहते हैं कि पानी के अंदर जो वो जंप लगा कर तैरती थी ना, ठीक है,
तैर रही थी, वो जल्दी जल्दी उसके अंदर वो अपना चक्कर लगा रही थी. इट वॉज फ्लैपिंग. राइट. अच्छा, ठीक है. और फिर वो थोड़ा सा पानी के अंदर घूमती थी, फिर वो थोड़ा सा फ्लाई करती थी. इट वॉज कॉल्ड फ्लैपिंग. So a fight began with lots of breaking and flapping. Mother duck was very angry because अब वो ये सब कुछ क्यों कर रही थी? Why was she flying? Why was she swimming? And why was she quaking? Because she was showing her anger. उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था सी गर्ल पर, क्योंकि उसको वो सेकंड बेबी भी ले गया था. राइट. द सी गर्ल वॉज फ्राइटेंड. अब जब उसने देखा कि वो जो मदर डक है वो तो बहुत सा गुस्से में है, शी वॉज शाउटिंग, शी वॉज शोइंग हर एंगर, सो द सी गर्ल बिकेम फ्राइटेंड. वो ज़रा खौफज़दा हो गया. एंड ड्रॉप मीन्स गिरा दिया द लिटिल डकलिंग. अब उसने क्या किया, जब सी गर्ल ने देखा कि ये तो मदर डक बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रही है, तो वो खौफज़दा हो गया. उसने उस डकलिंग को वहीं पर गिरा दिया. मदर डक आउट हिम अंडर हर विंग टू माइंड हिम. अब मदर डक थी, उसने अपने बच्चे को उठाकर अपने बाजू के अंदर, अपने पर के अंदर छुपा लिया. क्लियर? ओके जी. आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर. नाउ यू हैव come to know that why the title of this unit is the ducks in danger. ठीक है. इस तरह से डक जो है वो ख़तरे में है. दे आर इन डेंजर ड्यू टू द सी बर्ड्स, ड्यू टू द एनिमल्स, बिकॉज दे ईट देयर डकलिंग्स. ठीक है. डक्स इस वजह से ख़तरे में हैं क्योंकि इनके बेबीज़ को ख़तरा है वाइल्ड एनिमल्स से, जंगली जानवरों से और सी बर्ड्स से भी. ठीक है. और इवन कुछ ऐसे बर्ड्स भी हैं, एक ईगर बर्ड्स, ग्रीडी बर्ड्स. ठीक है. विच आर नॉट सी बर्ड्स. ठीक है. ओके जी. So now coming to the words meanings once again. If you have left with any meaning, you can write the meanings right now. ठीक है. Once again I am repeating these meanings, words meanings. Ducklings, baby ducks. Beside, by the side. Spends, consume, खर्च करना. Hatching, प्रोड्यूसिंग, पैदा होना. लेस, प्रोड्यूस. वार्म, हॉट, गरम. अपसेट, सैड, खफा. क्रैक, स्प्लिट भी कह सकते हैं आप और ब्रेक भी कह सकते हैं. ठीक है. मीन्स टूटना. ओके देन. फीड्स, गिव फूड. बिहेव, एक्ट. एवॉइड, स्किप. ठीक है. किसी चीज़ को छोड़ देना, किसी चीज़ से दूर रहना. ग्रीडी, ईगर, लालची. स्नैप, ग्रैस्प, झपटना किसी चीज़ पर. राइट. चीकी मीन्स बोल्ड, बहादुर. सी गर्ल मीन्स सी बर्ड. सूट मीन्स डाइव्ड, होता लगाना, या आप इसका मीनिंग फेल भी लिख सकते हैं. ओके. ग्रैब्ड, स्नैच्ड. स्केयर्ड मीन्स अफ्रेड. सडनली मीन्स एट वंस. स्क्रीच्ड मीन्स स्क्रीम्ड. क्वैकिंग मीन्स साउंड ऑफ डक्स. and flapping means flying. Right. These were all about your words meanings. Coming to your homework. Your homework is that you have to do the reading of the same unit at your homes. ठीक है. Do reading of unit number 14. जो हमने आज रीडिंग की है, इसी चैप्टर को आपने घर में रीड आउट करना है. राइट. Okay ji. I hope that you have understood about all this unit. If you have any question in your mind, you may ask when you will be having your next class. Clear? Okay ji. Now thank you so very much. Take care. Goodbye.